لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذکر علی عبادہ. ایک درود پر محمد و آل محمد پر. برادران، جیسا کہ آپ حضرات کو یہ علم ہے کہ یہ مجلس ہماری اصلاح کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم خطابت میں آگے بڑھ سکیں. خالق کائنات کے محبوب ترین بندے کہ جسے رسول کہتے ہیں وہ رسول اس کائنات کے امیر کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ ذکر علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. میرے عزیزوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مولائے کائنات ہیں اور لشکر والے ہیں کہ مولائے کائنات جنگ صفین کی طرف جا رہے تھے یا جنگ صفین میں جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ مولا کو کسی نصرانی نے آواز دی. جیسے ہی مولا کو نصرانی نے آواز دیا، مولا فوراً صفین کے راستے کو ترک کیا اور نصرانی کی طرف جانے لگے. اب جیسے ہی نصرانی کی طرف جانے لگے، لشکر والوں نے کہا: مولا، اچانک سے آپ نے راستے کو تبدیل کیوں کر دیا؟ اچانک سے راستے کو کیوں بدل دیا؟ ایک مرتبہ کائنات کا امیر ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر علی کو کوئی بلائے اور علی جائے نا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ علی کو کوئی بلائے اور علی جائے نا، یہ ہو نہیں سکتا. اتنا سننا تھا کہ لشکر والوں نے کہا: مولا، اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو ہمیں بھی ساتھ لے چلیں. کہا: مولا، اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو ہمیں بھی ساتھ لے چلیں. ایک مرتبہ مولائے کائنات نے کہا: ٹھیک ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو، لیکن جب میں کہوں کہ اپنی آنکھوں کو بند کرو تو آنکھوں کو بند کر لینا، جب کہوں کھولو تو کھول دینا. اتنا سننا تھا. مولائے کائنات نے کہا کہ اب اپنی آنکھوں کو بند کرو، جب میں کہوں گا کھولو تب کھولنا. اب لشکر والوں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا. ابھی کچھ ہی لمحہ گزرا تھا کہ ایک مرتبہ مولائے کائنات نے کہا: اپنی آنکھوں کو کھولو. اب جیسے ہی لوگوں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھا؟ سامنے نصرانی کی عبادت گاہ. سامنے دیکھا نصرانی کی عبادت گاہ. بدنا سننا تھا کہ نصرانی نے جیسے ہی لشکر کو دیکھا فوراً اوپر سے نیچے کی طرف آیا. آنے کے بعد مولا کے سامنے کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد مولا سے مخاطب ہوا. مخاطب ہونے کے بعد کہتا ہے: آپ کون ہیں؟ کہتا ہے: آپ کون ہیں؟ مولا نے کہا: تو نے پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ کہا: نہیں. کہا: آپ فرشتوں میں سے ہیں؟ کہا: نہیں. کہا: پھر کون ہے؟ کہا: پھر کون ہے؟ کہا: عیسیٰ روح اللہ ہے. کہا: ان کا وہ میرے محبوں میں سے ہیں. کہا: موسیٰ کلیم اللہ ہے. کہا: وہ بھی میرے محبوں میں سے ہیں. کہا: آدم ہے. کہا: وہ بھی میرے محبوں میں سے ہیں. کہا: نوح ہے. کہا: وہ بھی میرے محبوں میں سے ہیں. ایک مرتبہ پھر جملے کو بدلا. کہا: آپ جناتوں میں سے ہیں. کہا: ان کا بھی امام. کہا: انسانوں میں سے ہیں. کہا: ان کا بھی امام. ایک مرتبہ ابھی نصیریت کے مکتب میں ایڈمیشن لینے ہی والا تھا کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ خدا جسم نہیں رکھتا. اس کے دل میں خیال آیا کہ خدا جسم نہیں رکھتا. اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ نصیری کہتا ہے: آخر آپ ہیں کون؟ آخر آپ ہیں کون؟
जब जिन्नात भी नहीं, इंसान भी नहीं, अंबिया भी नहीं, औसिया भी नहीं, तो फिर है कौन? कहाँ जानना चाहते हो? कहाँ जानना चाहता हूँ। मौलाए कायनात कहते हैं तुमने कोई किताब पढ़ी है? कहा हाँ हाँ पढ़ी है। कहा कौन सी किताब? कहा मैं इंजील का हाफिज हूँ। वजह से उसने कहा कि मैं इंजील का हाफिज हूँ, एक मर्तबा मौलाए कायनात ने कहा क्या तुमने उसमें कोई नाम पढ़ा? कहा हाँ हाँ पढ़ा है। कहा क्या पढ़ा? कहा अच्छा अच्छा आफ्ताब है। कहा नहीं वो तो रसूल का नाम है। कहा फिर है कौन? कहा जानना चाहते हो? मुझे हर जबान में जाना जाता है। कहा अच्छा आपको हर जबान में जाना जाता है, तो बताएं आपको हर जबान में क्या जाना जाता है। एक मरतबा मेरे मौला ने बयान करना शुरू किया। कहा सुनो, इंजील वाले मुझे सुनैतिया कहते हैं, तौरात वाले मुझे एलिया कहते हैं, ताइफ वाले मुझे नबी कहते हैं, मदीना वाले मुझे हलता कहते हैं, मक्का वाले मुझे बाबुल बलद कहते हैं, अरब वाले मुझे अली कहते हैं, मेरे बाप मुझे ज़हीर कहते हैं, मेरी माँ मुझे हैदर कहती है। कहा मेरे बाप मुझे ज़हीर कहते हैं, मेरी माँ मुझे हैदर कहती है। अभी ये जुमला कह ही रहे थे कि मौलाए कायनात से फिर नसरानी ने कहा और बयान करें। मेरे मौला ने फिर बयान करना शुरू किया। कहा सुनो, पहले आसमान वाले मुझे अब्दुल समद कहते हैं, दूसरे आसमान वाले मुझे अब्दुल हमीद कहते हैं, तीसरे आसमान वाले मुझे अब्दुल मजीद कहते हैं, चौथे आसमान वाले मुझे जुल आला कहते हैं, पांचवें आसमान वाले मुझे अली उल आला कहते हैं, खुद नबी मुझे अबू तुराब कहते हैं, खुद खुदा मुझे मसनद इमामत पर बिठाकर अमीरुल मोमिनीन कहता है। तो एक जुमला मुझे कहने दीजिए कि जिसे फकीरान नसब अमीरुल मोमिनीन कहे वो और होता है, जिसे खुद खुदा मसनद इमामत पर बिठाकर अमीरुल मोमिनीन कहे वो और होता है। जिसे खुद खुदा मसनद इमामत पर बिठाकर अमीरुल मोमिनीन कहे वो और होता है। ऐसे बनने वाले न जाने कितने अमीरुल मोमिनीन बने, लेकिन खुदा के बनाए हुए अमीरुल मोमिनीन की बात ही अलग है। मेरे अजीजों, हम सब नजफ में हैं और नजफ की दहलीज पर हाथों को जोड़ते हैं, मौला से सवाल करते हैं, मौला अब तक मैंने मूसा से आपकी फजीलत सुनी, नूह से आपकी फजीलत सुनी, ईसा से आपकी फजीलत सुनी, इब्राहिम से आपकी फजीलत सुनी, जकरिया से आपकी फजीलत सुनी, सालेह से आपकी फजीलत सुनी, हूद से आपकी फजीलत सुनी, सबसे आपकी फजीलत सुनी, हर अंबिया से आपकी फजीलत सुनी, या यूं कह दूं कि 1,24,000 नबी से आपकी फजीलत सुनी। मौला आज मैं खुद चाहता हूं कि आपकी ज़बानी सुनूं। मौला मैं चाहता हूं कि आज आपकी ज़बानी सुनूं। मौला ने कहा अच्छा सुनना चाहते हो? कहा हाँ सुनना चाहता हूं। मौला बयान करने लगे। कहा कद कुन्तु मअ मूसा अल तूर व अना कल्लमतु, मैं मूसा के साथ कोहे तूर पर था और मैंने मूसा से कलाम किया। ये कलाम करने वाला आखिर था कौन? कहा मौलाए कायनात। नाम किसका हो रहा है? कहा खुदा का। मेरे मौला जैसे ही सब फजीलत बयान कर रहे थे, एक मर्तबा मैंने कहा मौला और फजीलत बयान करें। कहा सुनो, जब जनाब ईसा गहवारे में थे तो बोलने की सलाहियत मैंने अता की, नूह की कश्ती को नजात मैंने दिलाया, नूह की कश्ती को नजात मैंने दिलाया, आदम को हवा से मैंने मिलाया, आदम को हवा से मैंने मिलाया। मौला सारे फजाइल बयान कर रहे थे। हर फजाइल बयान करने से पहले वल्लाह मैंने आसमान को, मैंने सूरज को पलटाया, वल्लाह मैंने आदम को हवा से मिलाया, वल्लाह मैंने नूह की कश्ती को नजात दिलाया। जैसे ही ये सब कह रहे थे, हर जुमले से पहले मौला कसम खा रहे थे। मैं हाथों को जोड़ा और मैं मौला से सवाल किया, मौला आप तो सिद्दीक़ अकबर हैं, आपको कसम खाने की क्या जरूरत? आपको कसम खाने की क्या जरूरत? एक मर्तबा मौलाए कायनात ने फरमाया कि ताकि दुनिया वाले ये जान ले मैं बंदा हूँ, खुदा नहीं। मैं बंदा हूँ, खुदा नहीं। भाई बंदा ऐसा हो कि अगर कोई काम भी करे तो खुदा कहे मैंने किया। बंदा ऐसा हो कि अगर कोई काम भी करे तो खुदा कहे मैंने किया, मैंने किया। मुझे नजर अस्करी साहब के दो जुमले याद आ गए कि नजर अस्करी साहब इरशाद फरमाते हैं कि कहते हैं कि बांटने वाला साक़ी कौसर जाम खुदा का होता है, काम मेरा मौला करता है, नाम खुदा का होता है। काम मेरा मौला करता है। का काम मेरा मौला करता है, नाम खुदा का होता है। मेरे अजीजों, ये
मौलाए कायनात की फजीलत जितनी बयान की जाए कम है। अगर सारे दरख्त कलम बन जाएं और सारे समंदर स्याही बन जाएं, फिर भी मौला के फ़ज़ाइल को रकम नहीं किया जा सकता। बस मेरे अजीज़ों, मैंने अपनी रहमतों को तमाम किया। यही इमाम अली अलैहिस्सलाम के छोटे साहबजादे कि जिन्हें हुसैन कहा जाता है। यह हुसैन सन 60 हिजरी को मदीने को अलविदा कहा, और मदीने को अलविदा कहकर एक मर्तबा नाना के रोज़े से मुखातिब होते हैं और मुखातिब होकर कहते हैं, नाना, आपकी उम्मत वालों ने हमें मदीने में रहने न दिया। बस हुसैन ने अपने चंद कुनबे को लेकर मक्के की तरफ रवाना हुए। मक्के में पहुँचे तो मक्के में भी न रहने दिया। अब यहाँ से रवाना हुए, करबला में आए, यहाँ तक के 10 मुहर्रम आ गई। हाँ ज़ादारों, जब 10 मुहर्रम गुजर गई ना, 11 मुहर्रम आ गई, तो जब काफिले को असीर किया गया। हाँ ज़ादारों, ये काफिला 11 मुहर्रम सन 61 हिजरी को असीर होकर जब चला है ना, तो इस काफिले को उस तरफ से गुजारा गया कि जिस तरफ लाशें शोहदा पड़े हुए थे। इस काफिले को उस तरफ से गुजारा गया कि जिस तरफ लाशें शोहदा पड़े हुए थे। एक मर्तबा सैयद सज्जाद की नज़र अपने बाबा पे पड़ती है, और जैसे ही बाबा पे पड़ती है, एक मर्तबा सैयद सज्जाद के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता है। जैसे ही सैयद सज्जाद के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ, जनाब ज़ैनब की नज़र अपने भतीजे पर पड़ती है और कहती हैं, ऐ बेटा सज्जाद, क्या इस आलम गुरबत में तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे? वह इतना सुनना था कि एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं, फूफी अम्मा, वो बेटा कैसे बर्दाश्त करे कि जिसके हाथों में हथकड़ियाँ हों, पैरों में बेड़ियाँ, कमर में लंगर, गले में खारदार तोक हो। हाँ ज़ादारों, वह इतना सुनना था। अभी ये काफिला आगे बढ़ा। अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि एक मर्तबा सर हुसैन नो के नेज़ा की बुलंदी से नीचे आ जाता है। जैसे ही सर हुसैन नो के नेज़ा की बुलंदी से नीचे आया ना, एक मर्तबा सिमर ताज़ियाना लेकर आगे बढ़ा, और ताज़ियाना आगे लेकर बढ़ता है और सर हुसैन को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन सर हुसैन आगे नहीं बढ़ता। सिमर उस बीमार के पास आता है, उस नातवा के पास आता है कि जिसके हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, कमर में लंगर है, गले में खारदार तोक है। एक मर्तबा उस बीमार के पास आकर सिमर क्या कहता है? कहता है, सैयद सज्जाद, ऐ सैयद सज्जाद, अपने बाबा से कह दो कि आगे बढ़ जाएं, वरना मैं तुझे तमाचे मारूंगा, वरना मैं तुझे ताज़ियाने मारूंगा। वह इतना सुनना था कि सैयद सज्जाद अपने हाथों की हथकड़ियों को संभालते हैं, पैरों की बेड़ियों को संभालते हैं, कमर के लंगर को संभालते हैं, गले के खारदार तोक को संभालते हैं, और संभालने के बाद अपने बाबा के सर के करीब आए और आन के कहते हैं, बाबा, 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 मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं सिमर के ताज़ियाने खा सकूं। बाबा, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? एक मर्तबा कटे हुए सर से आवाज आई, ऐ बेटा सज्जाद, मेरे सीने पे सोने वाली बच्ची सकीना इस काफिले से बिछड़ गई है। अजरुकुम अला ज़हरा, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय मजलूम करबला के। ऐ बेटा सज्जाद, मेरे सीने पर सोने वाली बच्ची सकीना इस काफिले से बिछड़ गई है। बात न सुनना था। जैसे ही इस आवाज़ का बीबियों के कानों तक पहुंचना था, बीबियां पुश्ते नाका से उतरती हैं। उतरने के बाद सकीना को तलाश करती हैं। कोई बीबी इधर तलाश करती है, कोई बीबी इधर तलाश करती है। हाँ ज़ादारों, एक वक्त वो भी आया कि जब जनाब ज़ैनब उस मकाम पर पहुंचती हैं कि जहां एक ज़ईफ़ा उस बच्ची को प्यार कर रही थी। अल्लाहु अकबर। जहाँ एक ज़ईफ़ा उस बच्ची को प्यार कर रही थी, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब जाके कहती हैं, ऐ ज़ईफ़ा, तू कौन है जो इस बच्ची को प्यार कर रही है? हाय, इसका प्यार करने वाला कोई न रहा। इसका बाबा मारा गया, इसका चचा मारा गया, इसका भैया मारा गया। ऐ ज़ईफ़ा, तू कौन है जो इस बच्ची को प्यार कर रही है? बस इतना सुनना था कि एक मर्तबा ज़ईफ़ा ने अपने सर के बाल अपने चेहरे से हटाती है और हटाने के बाद कहती है, ऐ बेटी ज़ैनब, क्या तू मुझे पहचानती नहीं? मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा हूँ।
اللہ اکبر، اجرکم اللہ زہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اے بیٹی زینب، کیا تو مجھے پہچانتی نہیں؟ میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ بات نہ سننا تھا کہ جناب زینب اپنی ماں سے لپٹ جاتی ہیں اور لپٹنے کے بعد یہ بیان کرتی ہیں، اماں مجھے کربلا میں لوٹ لیا گیا، اماں میری کربلا میں ردائیں چھین لی گئی، اماں بھائی مارا گیا، عباس مارا گیا، علی اکبر مارے گئے، اماں ابھی سفر طویل ہے، کبھی کوفے کا بازار ہوگا، کبھی شام کا دربار ہوگا، اور آپ کی بیٹیاں بلوائے عام میں سرننگے پھرائی جائیں گی۔ سیا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم لامرہ۔